Hello everyone and welcome back to the channel. This is Avinav. So in this video we are going to talk about the first four problems of Codeforces round 776, which are deletions of two adjacent letters, diff plus mod, weight of the system of nested segments, and twist the permutation. So if I talk the difficulty of the problem, the first and two were quite easy with the level of I think less than 1000. But yeah, I can see that these problems are quite tricky, and you have to find the exact solution of the problem to solve them. Okay. Now the problem C was good, and the problem C and D both were based on brute force, but the implementation was quite difficult, and they were based on the implementation tag. Means they are just the implementation. If you are able to implement the logic, because the logic was very easy. Okay, so these are the four problems, and in the first and second problem, I made one wrong submissions each, and which was my mistake because वो नहीं होना चाहिए था. I should avoid wrong submission, but my third and fourth was accepted in the first attempt. So it was great, and today maybe I will achieve specialist again because my last 4 to 5 contests are going worst. Okay, yeah. So first of all, discuss the problem number first. Okay, which is deletion of two adjacent letters. So this was a very good problem. So in this problem, you have to just check that you have to delete some adjacent, you can say letters. Okay, two adjacent letters, and there are odd number of letters in the string. You have to tell that if it is possible to delete to perform some operations such that you can get the final character C after performing some operations. So how can we do it? How can we do it? So we have to observe one thing. Just a minute. We have to observe one thing that, for example, there are a string of length 5. So let me move towards the whiteboard to understand it more clearly. So let me open my whiteboard. Just a minute. Okay, yeah. So I hope my whiteboard is visible to you. And yeah, so this is my whiteboard. So now what we will do is, for example, the length of our string is uh, 5. Okay, the length is 5. So if the length is 5 and the overall, because the overall length of the every string is odd, so if there are for example s1, s2, s3 up to sn letters in that particular string, and where n is odd, and for example we have to find the character ch. For example, the character ch is available at third index. So we can achieve this because there are even number of characters before that character, even number of characters after that characters. For example, if it is s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7. So if this is the required character, we can achieve it because there are even number of characters after that. So we can just first delete this, and this. Okay. After that, if the desired character is at position number 2, in this case we can't achieve it because there are odd numbers of in the left also, in the right also. We can delete these two, we can delete these two, but we cannot delete this and this. It cannot be achieved. So the thing is that the desired character should be at the even position, should be at the even position, or you can say even index if it is zero biased, because this is the even position. Sorry, if we talk about the index, but if we talk about this, if the required character is in the odd places, for example this place, this place, this place, this place, then we can get the answer, because if it is in the odd place, then the characters before that and the characters after that are even numbers, so we can achieve that. Okay, तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो कैरेक्टर है कौन सी पोजीशन पे ये आपको देखना पड़ेगा कि उसके पहले कितने, उसके बाद में कितने हैं. अगर उसके बाद में पहले दोनों इवन होंगे तो आप अचीव कर सकते हैं. ओके, सो if I move towards the code part, what I have done, and it is all the problems are basically implementation based, and in division tree contest normally implementation and brute force solutions are only there more number of times. So here what we have to do, we have to just uh, input a string and a character, then we have to check the index of the particular character.
if the index is even, means when the array is 0 base, then you have to return yes, otherwise you have to return no. So that was a quite easy solution of the problem. I hope you get it. Now problem number B, it was a great problem in which you have to find a div plus mod. So you are given with x and you are given with a number a, and you have to find a number x which is in the range of L and R, such that the value of x by a plus x mod a should be maximum possible. तो इसमें आपको एक ऑब्जर्वेशन करना है. ऑब्जर्वेशन ये करना है कि आपकी जो वैल्यू है वो है, जस्ट अ मिनट, x by a प्लस x mod a. तो जो वैल्यू x mod a है, ये इस पहले इसको ध्यान दो. दिस इज जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम. इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो जो x mod a की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो होती है 0. और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी a माइनस 1. ये सबको पता है, इसी के में लाई करेगी. ठीक है. और जो इसकी जो वैल्यू होगी वो आप देखो, अगर x लिखा है, x बाय a है, तो हमेशा इसकी सील वैल्यू देगा. समझ में आ रहा है? तो अगर यहां पर हम लोग जो x की जगह हम लोग ऐसा नंबर लें जो कि, क्योंकि a माइनस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है. तो अगर जो ये नंबर होगा, ये अगर a का मल्टीपल होगा, फॉर एग्जाम्पल नंबर होगा n इंटू ए, ये x नंबर, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 0. क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये n इंटू ए जो है a से डिविजिबल होता है, 0 देगा डिपेंडेंट. पर अगर ये वैल्यू होगी n इंटू ए माइनस 1, तो ये a माइनस 1 देगा. तो हमें ये जो x वैल्यू है हमेशा n इंटू ए माइनस 1 लेनी पड़ेगी, सो दैट हमें ये वैल्यू मैक्सिमम मिल जाए. और वैसे भी अगर हम लोग n इंटू ए लेते तो यहां पर n इंटू ए बाय ए जो होता वो n आता. ठीक है. और यहां 0 आता, तो वैल्यू आती n प्लस 0. यहां से n, यहां से 0. पर अगर हम लोग n इंटू ए माइनस 1 अपॉन ए लेंगे तो इधर से वैल्यू आएगी n माइनस 1. आप चेक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग 5 को 14 से डिवाइड करते हैं. 14 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 3 माइनस 1 बाय 5. सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 2. मतलब 3 माइनस 1 2, मतलब एक कम, क्योंकि अगर हम लोग n इंटू ए कर रहे हैं तो n आ रहा है डायरेक्ट. एक भी कम कर देंगे तो सील करके वो n माइनस 1 आ जाएगा. और इधर से क्या आ रहा है? इधर से a माइनस 1 आ रहा है. तो ये जो वैल्यू होगी ये n माइनस n प्लस ए माइनस 2 हो जाएगी. तो ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी. ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी. क्यों बड़ी होगी? क्योंकि जो a की वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाएगी, तो हमेशा बड़ी होगी इससे. बात समझ में आ रही है? ओके. इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं. तो अब एक तो बात समझना है कि जो x हमें लेना है वो मल्टीपल ऑफ a माइनस 1 लेना है मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए. ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था. तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा, और ये मैक्सिमम भी होना चाहिए. मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल जो होगा उससे एक कम वैल्यू लेनी है. तो हम लोग क्या करें, हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल निकाल लेंगे a का, जो x के लिए x l और r के बीच में प्रेजेंट होगा. ठीक है. मैक्सिमम पॉसिबल ले लेंगे और फिर क्या करेंगे हम लोग कि उससे आंसर निकाल लेंगे. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल ले लेंगे और उससे आंसर निकाल लेंगे. अब देखो कोड में मैंने क्या किया हुआ है. ठीक है. कोड पार्ट देख लेते हैं. जस्ट अ मिनट. या सो कोड में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया. मैंने नॉर्मली जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी, पहले तो मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल निकाल लिया, ये तरीका होता है उसको निकालने का. अब उससे एक कम वैल्यू निकाल लिया. ठीक है. जो हमें लेना है, अगर वो वैल्यू यहाँ लाइक कर रही होगी एक्स और एल के एल और आर के बीच में, तो फिर अगर लाइक नहीं कर रही होगी, सॉरी, तो हम लोग एक्स को आर ले लेंगे. क्यों आर लेंगे देखते हैं. अगर नहीं तो फिर हम लोग एग्जैक्टली उसी एक्स को ले लेंगे. अब देखते हैं वो लाइक नहीं करे तो हम लोग एक्स को आर क्यों लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट. फॉर एग्जाम्पल ये वाला केस जब लाइक नहीं करेगी, ये भी देख लेते हैं हम लोग. ठीक है. देखो ये केस कब आएगा. अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जो ये है वो 5 है. ठीक है. और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है, सॉरी 2 मिनट. यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई है जो कि है 13 और 13 के बाद आई है 10 9 12.
फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है। तो अगर हम लोग इस 13 और 12 के 12 13 20 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो पहले तो हम लोग निकालेंगे कि 5 का क्या है। तो जो 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल आएगा वो आएगा 13 डिवाइड बाय 5 इंटू 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। ये 10 होगा 5 का मल्टीपल, तो सबसे 13 से जस्ट छोटा मल्टीपल वो आ जाएगा, 13 से जस्ट छोटा मल्टीपल। अब उससे कम मतलब 10 माइनस 1, हमें 9 अगर मिले तो हम लोग मैक्सिमम दे सकते हैं, पर 9 तो इस रेंज में ला ही नहीं करता है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में 9 ला ही नहीं करता है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि 13 को ही ले लेंगे। बिकॉज अगर हमारे केस में a माइनस 1 लाई नहीं करता है तो उससे छोटा a माइनस 2 मिल जाए या a माइनस 3 मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो हम लोग अगर मतलब 9 नहीं लाई करता तो कुछ और देख लेंगे, तो हम लोग ऐसा देखेंगे तो हम लोग r बेसिकली ले लेंगे। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, ठीक है। तो वही मैंने किया है, x को r ले लिया है और फिर इस तरीके से मैंने इसे सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं, नॉर्मल प्रिंट कर दिया है। फाइन, ओके, नाउ द प्रॉब्लम नंबर सी, इट इज आल्सो अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम एंड ग्रेडी बेस्ड। देखो इसमें क्या था कि आपको ये इंटरवल बनाने हैं। पहले चीज क्या, इंटरवल जो होंगे ये इस इंटरवल का एक सब इंटरवल होना चाहिए, इस इंटरवल का एक सब इंटरवल होना चाहिए इसके अगला वाला, तो बहुत ही इजी था। और आपको क्या करना था कि सम का वेट था, वेट का सम था, वो आपको मिनिमम करना था। तो अब नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मली क्या करेंगे, ये तो बहुत ही ईजी था, मतलब ये बहुत ही मुझे इजी क्वेश्चन लगा, मुझे लगने था इतना इजी होगा, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट था ये। इसमें क्या था कि आप जो सबसे छोटे वेट्स होंगे, जैसे कि आप सबसे छोटा क्या -1 है, फिर 1 है, फिर 1 है, -2 है और 3 या 10 है। आपको कितने, आपको यहाँ पर 6 वेट चाहिए, तो आपने सबसे छोटे 6 वेट जो थे सबसे छोटे वो आपने ले लिए, फिर आपने उनके बीच में इंटरवल बना दिया। क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे मैंने आपने सबसे छोटे छोटे वेट ले लिया, उसके बीच इंटरवल बना दिया, क्योंकि आपको मिनिमल चाहिए, मिनिमम चाहिए आपको सम। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू क्या थी, यही 6 थी, 10 और 20 बड़े थे। और फिर उनको हमें हमें अरेंज कैसे करना है, ये बड़ी चीज थी कि पहले इसको और इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। अब इसको मेन देखते हैं हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है, सीधे सीधे देख लेते हैं, इसमें कुछ बड़ा खास नहीं किया मैंने, ठीक है, देख लो यहाँ पे। सो व्हाट आई हैव डन इज, first of all I have taken a map, and in that map what I have done is I have, because what we have to output the index at which the हमें कौन सा पॉइंट किस इंडेक्स पे बताया गया है, कि जो 0 है वो 10 पे है, -2 1 है, 4 10 है, ये हमें ये बताना था। पहली बात तो हमें पॉइंट का इंडेक्स नहीं बताना था, तो हमने एक मैप ले लिया जिसमें कौन सा पॉइंट हमें किस इंडेक्स पे इनपुट मिल रहा है वो मैंने स्टोर कर लिया है एमपीपी में। अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो था इसको मैंने सॉल्व कर लिया है वेट के अकॉर्डिंग, सो दैट हमें जो वेट के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, जो सबसे छोटा वेट वाला इंडेक्स वो पहले आ जाए, ठीक है। जैसे सबसे जो -2 होगा वो पहले आ जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने सिंपली जो सॉल्व करने के बाद में मैंने एक आंसर, जिसमें मैं आंसर लिखूंगा, मतलब जिसमें मैं आंसर जो हम लोग लेने वाले हैं एट द लास्ट इंडिसेस वो मैं लूंगा। अब जो भी मैंने सॉल्व किया है, मतलब जो सबसे छोटे 2n हो जाएंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे, मैं उनका सम ले लूंगा और उनकी इंडेक्स क्या है वो मैं इस आंसर में पुट बैक कर लूंगा। अब मेरे पास 2n आ गए हैं, 2n इंडिसेस आ गए हैं, उनका सम आ गया है। अब मैं सम को पहले तो प्रिंट कर लूंगा। अब वो जो 2n इंडिसेस आई थी वो किसी रैंडम ऑर्डर में होंगी, उससे हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना, पहले पहले -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। अब मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया। अब एक और चीज, असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में अब ये जो -2 था ये किस इंडेक्स में हमें इनपुट मिला था ये हमें देखना होगा। तो -2 जो था हमें वो 3rd नंबर में मिला था, तो आप देख सकते हो। और -2 के साथ क्या है, 9 है, तो 9 जो था हमें वो हमें 1 2 3 4 5 6 7 मिला था। जो पहला इंटरवल है वो है 3 से 7, सॉरी 2 से 6। ये लो, कैसे 2 से 6, क्योंकि ये जो है ये हमें 2 सेकंड नंबर पे मिला है -2, और ये हमें 6 नंबर पे मिला है, तो जो पहला इंटरवल है वो 2 से 6 है, ये चीज होनी है। तो मैंने एमपीपी में पहले स्टोर कर लिया है कौन सा इंटरवल, कौन सा इंडेक्स हमें कौन से इंडेक्स में मिला हुआ है। फिर मैंने सॉल्व करने के बाद में सबसे पहला और सबसे आखिरी देख लिया, मतलब पहला आखिरी, फिर ये फिर ये इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर आउटपुट कर दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पर आउटपुट कर दिया। ये कुछ एक अनयूजुअल, मतलब कोई काम की नहीं थी इक्वेशन, पर मैंने लिख दिया इफ एल्स लगा दिया, बाकी कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। बाकी मैंने सम इनपुट कर दिया, एरे को सॉल्व कर लिया, और उस पर्टिकुलर जो इंडेक्स है वो किस नंबर में हमें इनपुट मिली थी हमने उसको एमपीपी के थ्रू यहाँ पर आउटपुट कर दिया है।
सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। Okay, now let's move towards the next problem, which is the D1. It is also a great problem. देखो इसमें क्या था कि इसमें आपको कुछ ऑपरेशन करने हैं। एक ऑपरेशन आपको क्या करना है कि आप जब i इज इक्वल टू 1 होगा तो आप जो स्टार्टिंग के 1 नंबर हैं उनमें आप रोटेट राइट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जितना आप चाहे उतना रोटेट कर सकते हैं। फिर जब i2 होगा तो आप इन दोनों नंबर को कर सकते हैं, i3 होगा तो आप इन दोनों नंबर को कर सकते हैं, i4 के लिए आप इन चारों को कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब देखो मेन चीज क्या है। अब मेन चीज ये थी कि अब इन क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको हमेशा अपोजिट चलना होता है। आपको ये पता है, आपको बताना है कि आपने जब i1 था तो आपने कितने रोटेशन किए होंगे, i2 के लिए आपने कितने किए होंगे, i3 के लिए आपने कितने किए होंगे। तो इसमें आप उल्टा करिए और आपको ये डिजायर्ड एरे चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए कि ये डिजायर्ड एरे है, इसमें अपोजिट ऑपरेशन लगाइए कि उसमें आखिरी जो ऑपरेशन था, जब i इज इक्वल टू 6 था तो कितने रोटेशन हो रहे होंगे, कितने रोटेशन राइट के हो रहे होंगे, हम उतने रोटेशन लेफ्ट के कर देते हैं। समझ आ रहा है? बिल्कुल अपोजिट चलो। अब देखो हम इसी वाले एरे को लेके चलते हैं, इसी एरे को लेके चलते हैं, इसी को समझते हैं। जैसे ये था, ठीक है, ये एरे थी। इस एरे को समझने के लिए हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड में। देखो क्या हो रहा है। ये एरे है, यहाँ मैंने इसको ले लिया एंड इसके बाद में मैंने क्या किया है यहाँ पर कि सॉरी, ये है 5 नंबर। अब हमने क्या किया, पहले 6 देख लिया। जो 6 था वो लास्ट में होना चाहिए था भाई। जब हमारे 5 ऑपरेशन हुए होंगे 6 तो नहीं छुआ गया होगा ना, 6 तो हमेशा लास्ट में होना चाहिए था, 6th इंडेक्स पे, मतलब 5th इंडेक्स पे। तो ये 6 यहाँ कैसे आ गया, मतलब 4 बार राइट रोटेशन हुआ होगा। ये हमने 6 के इंडेक्स देख के पता लगा लिया कि 4 बार राइट रोटेशन हुआ होगा। तो हम लोग 4 बार लेफ्ट रोटेशन कर दें। 4 बार लेफ्ट रोटेशन हमें क्या मिलेगा पता है? हम लोग 4 बार लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, फिर इधर चला जाएगा। इस तरीके से हमें ये मिल जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, 1 4 3 2 5 6, ये मिल जाएगा जब हम लोग 4 बार लेफ्ट रोटेशन करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि हमने आखिरी जो स्टेप था, बिल्कुल आखिरी, जब i इक्वल 6 था तो हमने 4 बार राइट रोटेशन किया होगा। तो हमने यार 4 डाली अपने एरे में। अब देखो, अब हम लोग 5 देखते हैं। अब 5 देखो अपनी जगह पे है। इसका मतलब जो i इक्वल टू 5 था तो कोई भी रोटेशन नहीं हुआ था, 0 कर दो। अब देखते हैं 4 कौन सी जगह, तो 4 यहाँ पर है, जबकि 4 को यहाँ होना चाहिए। मतलब इसने 2 बार राइट रोटेशन किए होंगे, एक बार इधर गया होगा, फिर एक बार इधर गया होगा। तो अब इसके बाद 2 लेफ्ट रोटेशन करा देते हैं, इधर भेज के इधर भेज देते हैं। समझ में आ रहा है? तो 2 लेफ्ट रोटेशन, उसको 2 राइट रोटेशन कराया था ना वहां पे, उसको 2 अब इसके लिए ये बन जाएगी हमारी 3 2 1 4, ये बन जाएगी। समझ में आया? अब देखो, अब ये देखेगा, ये 16 अपनी जगह पे आ गया। अब देखेगा 3 कहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 को यहाँ होना चाहिए था। मतलब इसने एक राइट रोटेशन किया होगा। तो अब इसको एक लेफ्ट करा देते हैं, पीछे भेज देते हैं, और यहाँ पर एक लिख देते हैं कि इसने एक राइट रोटेशन किया होगा अपने टाइम पे। अब ये हो जाएगा 2 1 3 4 5 6। अब 2 देखते हैं, 2 भी देखो अपनी जगह पे नहीं है, इसने एक राइट रोटेशन किया है, तो इसको ऐसे कर देते हैं। समझ में आ रहा है? और 1 अपनी जगह पे, पहला में से 0 ही होगा। जब 1 है तो क्या ही रोटेशन करोगे। ठीक है, ये आंसर देखो आ रहा होगा अगर चेक करें हम लोग, 0 1 1 2 0 4। अगर हम लोग चेक करें वहां पर तो यही आंसर हमें मिल रहा होगा, 0 1 1 2 0 4। ऐसे आप बाकी भी ट्राई रन कर सकते हैं। हम लोग सीधे इम्प्लीमेंटेशन से, बहुत ही इजी इम्प्लीमेंटेशन मैंने ऐसा किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसा ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट भी किया है। ठीक है, देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि या मैंने नॉर्मली पहले इनपुट ले लिया, फिर मैंने हर नंबर के लिए n से लेके 1 तक चेक कर लिया कि वो कहाँ पर है। अब अगर वो अपनी जगह पे नहीं है, मान लो अपनी जगह पे ही है, z इज इक्वल टू -1 है, जहां होना था वहीं है, तो 0 पुश बैक कर दिया। नहीं तो फिर वो कहाँ पर है, उसने राइट रोटेशन किए होंगे। अगर वो अपनी जगह पे नहीं है तो उतने ही राइट रोटेशन उसने किए होंगे, तो हम लोगों ने वो चेक कर लिया और उतने ही लेफ्ट रोटेशन करा दिए। ये लेफ्ट रोटेशन। अगर आपको रोटेशन नहीं आता है तो प्लीज जाके गीक्स का कहीं और का आर्टिकल पढ़ लें कि रोटेशन लोग कैसे करते हैं, राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन, और वो काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रोटेशन। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लास्ट में मैंने 1 के लिए चेक नहीं किया है, और ऑब्वियस बात है 1 के लिए 0 ही होगा। और फिर उस एरे को मैंने रिवर्स करके यहाँ पे उस एरे को प्रिंट कर दिया है। तो बहुत ही नॉर्मल सा कॉमन सा मेरा सॉल्यूशन है।
आई होप समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे साथ आप लिंक्डइन में भी ज्वाइन हो सकते हो। लिंक्डइन में मेरे कनेक्ट हो जाओ, चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। वीडियो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।